Hi everyone, this is Elisa here. Is anyone out there who are looking for a incorporation of a new company or a firm or an organization? And are you guys wondering uh, whether if I have to register under GST, under what type of dealer I fall in, or no, you will have a lot of questions whether I should opt for composition, whether I should go for regular, or there are someone out there who doesn't have any idea about what GST is, what are the types of dealers under GST. So we come across all these queries when we opt when we think about opting for a GST registration. So today here I'll be sharing with you what are the types of dealers under GST and what does each indicate. So if you are starting your business, you will be clear with under what type of dealer you are falling under and what should be the registration that you're opting for. So as you can see here, I have a chart of types of dealers under GST. So there are 4 types of dealers under GST: unregistered, composition, regular, and consumer. So if your turnover within a financial year is below 20 lakhs or 40 lakhs respectively. So the thing is that it is updated to 40 lakhs right now, but some of the states is not accepted that limit, and so those states still come under the turnover limit of 20 lakhs. Say Telangana. Telangana has not yet accepted the limit of 40 lakhs. So it will still come under the limit of 20 lakhs. So therefore I have written 20 and 40 both here respectively. So whatever states have accepted the full limit of 40 lakhs, they will fall under 40 lakhs limit, and the other states will fall under 20 lakhs. Okay. So if your turnover during the financial year falls below 20 lakh, you will fall under this category, which means you don't have to register yourself under GST and you don't have to follow any compliances of the GST Act. Okay, so this is like you will fully be exempted from GST. You don't even need to register yourself, and there are not going to be any complications because of this thing that you have not registered, or if your customers are asking for the GSTN number or anything, you can simply quote that my turnover limit falls below the limit specified, and so I don't need to register myself. Okay, so this is unregistered dealer. Next we come with composition dealer. If your turnover limit is between 40 lakhs to 1.5 crore during a financial year, you can opt yourself as a composition dealer. Now, what is a composition dealer? What does it indicate? What are the limits? What are the restrictions applied? And what is the scheme of composition dealer? We'll come back to all this. First, we'll go and see all the turnover limits. So in this composition dealer also, if you are falling below 40 lakhs or 20 lakhs respectively, but you still want to register yourself under GST voluntarily, you can do that. There is no option which is going to restrict you from registering yourself under the composition dealer. But if your turnover limit is above 40 lakhs or 20 lakhs respectively, and you want to opt for unregistered dealer, you cannot do so. So if you are falling above the limit of 20 or 40 lakhs, you have to opt yourself as a dealer, as a dealer under GST, whether be it composition or regular, whatever you fall under. You'll get to know this after we see the conditions. Okay. Then regular. For regular dealer, if your turnover is about 1.5 crore in a financial year, you have to opt yourself as a regular dealer. Now again the same thing. If your turnover is below 1.5 crore and you want to opt yourself as a regular dealer, you can do that. But if your turnover is above 1.5 crore and you want to go for composition dealer, you cannot do that. Okay, clear with this? So, and then you come across a thing called consumer. So for consumer, you do not have any specific turnover limits or anything. I will tell you what the consumer is after we are done with the composition and regular dealers. Okay, so now for a regular dealer, what is the scheme of paying tax? What is the tax payable amount? See, if I am a regular dealer, what do I have to pay tax on? What is the amount of tax that I have to pay to the government?
Is it the amount of tax that is there on my sales? Is it the amount of tax that is there on my purchases? For those who have done VAT or similar things before, they will be familiar with this concept of ITC, that is input tax credit. But for those who are very new to the taxation system, they will not know what is that. So I will just explain it to you with a short example. See, if suppose I purchase a pen from a manufacturer, say the cost of that pen for me is 10 rupees. Okay, then I put my tax on that, whatever percentage, say X amount, say 2 rupees is my tax on that. So 10 plus 2, 12 rupees will be the selling price that I will quote to the person that I'm selling. Okay, so now that person will have its purchase price as 12 rupees, which he has purchased from me. For me, it's a selling price. For that person, it's a purchase price, right? Then that person will put its tax on that. For suppose, for now, we are just eliminating the profit margin and stuff. We are just looking as a simple example so that we can understand it. So that person will have its purchase price as 12 rupees and the tax is always levied on the purchase price, right? So मेरे लिए वो purchase price 10 rupees था, पर for the person जिसको मैंने बेचा है उसके लिए वो purchase price 12 rupees हो गया. So when he will levy tax on that, he will levy tax on 12 rupees. So 12 rupees ka, if you say 3 rupees is the tax on that, for example, so that selling price for that person will come up to 15 rupees. वो जब आगे किसी को बेचेगा तो वो 15 रुपए में बेचेगा, ठीक है? अब सपोज वो आगे जो बेच रहा है वो फाइनल कंज्यूमर है. सपोज हम इतनी चेन अभी देख रहे हैं. अब वो जो जिसको मैंने बेचा है, से मिस्टर एक्स, उसके लिए जो 12 रुपीज पे उसने टैक्स पे किया है, उसमें से 10 रुपीज इज द कॉस्ट ऑफ परचेज फॉर मी, राइट? बट जो 2 रुपीज पे वो टैक्स पे कर रहा है, दैट इज द टैक्स पोर्शन विच आई हैव ऑलरेडी कलेक्टेड फ्रॉम हिम एंड पेड टू द गवर्नमेंट, राइट? सो अभी जब वो 12 रुपीज पे टैक्स लगा रहा है, वो जो 2 रुपीज पे जो टैक्स लग रहा है, इट इज टैक्स ऑन टैक्स, कि मैंने ऑलरेडी वो टैक्स पोर्शन के लिए ही कलेक्ट किया है, आई हैव पेड इट टू द गवर्नमेंट, और उसके ऊपर वापस उस इंसान को टैक्स लग रहा है. सो दिस सिस्टम ऑफ टैक्स ऑन टैक्स इज कॉल्ड डबल टैक्सेशन इफेक्ट और कैस्केडिंग इफेक्ट. सो अभी हमने 3 ही एग्जांपल्स देखा है. फॉर सपोज इन द प्रैक्टिकल सिनेरियो, इफ यू सी फ्रॉम द प्रोडक्शन टिल द कंजम्पशन, वो चेन बहुत बड़ी होती है आपकी. और वो चेन, अभी तो मैंने एक सिंपल सा एक 10 रुपए के पेन का एग्जांपल लिया है. सपोज आप कोई लाखों रुपए के गुड्स का एग्जांपल ले रहे हो एंड इट इज पासिंग थ्रू 10 पीपल बिफोर रीचिंग टू द कंज्यूमर. सो आप सोचो वो टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स, वो कितना ज्यादा उसका कॉस्ट बढ़ जाएगा. द फाइनल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट विल बी अनबेरेबल फॉर द कंज्यूमर. सो टू अवॉइड दिस थिंग, गवर्नमेंट हैड come up with a concept called ITC, that is input tax credit. अब ये ITC क्या है? अभी जब मिस्टर एक्स जो है जिसको मैंने बेचा है, वो पर्सन जब किसी तीसरे को बेच रहा है 15 रुपये 15 रुपीज में, राइट? सो वो क्या करेगा, द टैक्स पोर्शन दैट ही हैज पुट, दैट इज 3 रुपीज, माइनस द टैक्स पोर्शन विच आई हैव ऑलरेडी पेड टू द गवर्नमेंट, जो उसने परचेज पे मुझे टैक्स पे किया था 2 रुपीज का. He purchased it from me at 12 rupees. So उसने मुझे वो 2 रुपीज जो टैक्स पे किया था, वो उसके आउटपुट टैक्स में से, दैट इज जो 3 रुपए का टैक्स वो चार्ज कर रहा है कंज्यूमर से, उस 3 रुपीज में से वो ये 2 रुपीज डिडक्ट करके जो नेट 1 रुपी होगा वो ही वो गवर्नमेंट को देगा. मतलब आपके सेल्स के टैक्स जो भी लग रहा है उसमें से आप आपका परचेज का टैक्स माइनस करके आप नेट जो है वो गवर्नमेंट को पे करोगे. सो आप जब भी आपके बिजनेस में टैक्स पेएबल कैलकुलेट करते हो, सो इट विल बी योर टैक्स ऑन सेल्स माइनस टैक्स ऑन परचेजेस, जो नेट आएगा वो आपका होगा टैक्स पेएबल व्हिच यू विल पे टू द गवर्नमेंट. ओके, सो अब ये जो परचेज का टैक्स आप माइनस कर रहे हो, मेरे एग्जांपल में जो 2 रुपीज वो माइनस कर रहा है उसके 3 रुपीज के आउटपुट टैक्स में से, वो 2 रुपीज को आप कहेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट व्हिच इज ITC. Okay, so this is the system of ITC that government came up, ताकि
वो टैक्स पे टैक्स ना लगता जाए। हर स्टेज पे वो टैक्स बढ़ेगा, पर जो प्रीवियस स्टेज वाला टैक्स होगा वो माइनस हो जाएगा, तो आपका नेट जो नेट है टैक्स वही आपको सिर्फ पे करना होगा, विच विल बी अ टैक्स ऑन प्रॉफिट। मतलब आपकी एक्चुअल अर्निंग जो है, प्रॉफिट है, उस पर ही आप टैक्स पे कर रहे हो। ठीक है, तो अभी ये जो मैंने सिनेरियो बताया है दैट इज एप्लीकेबल फॉर रेगुलर डीलर्स। ओके, रेगुलर डीलर्स का ये सिस्टम होता है नॉर्मली कि टैक्स ऑन सेल्स माइनस टैक्स ऑन परचेसेस, नेट जो है वो आप पे कर दोगे। ठीक है, और व्हेन इट कम्स टू अ कंपोजिशन डीलर, आपका क्या होता है, गवर्नमेंट क्या कह रही है आपको कि आप इतने बड़े डीलर भी नहीं हो, करोड़ों में आपका बिजनेस चल रहा है, और आप इतने छोटे भी नहीं हो कि हम आपको एग्जेम्प्ट कर दे कि आपका महीने आपका साल भर का 20 लाख या 40 लाख से टर्नओवर नहीं हो रहा है, राइट? So we don't want to exempt you completely, but then we don't want to give you a burden of handling a lot of things which a regular dealer does. For regular dealer, if you go to see GST returns, like when you file returns also, they have 3 returns, GSTR 1, 2, 3. For composition, it is only one return, that is CMP 08. So अभी गवर्नमेंट कह रही है कि हम आपको इतनी फॉर्मेलिटीज से बर्डन नहीं करना चाहते, बिकॉज यू आर ग्रोइंग, यू आर अ मिड साइज कंपनी जो, एंड वी वांट कि आपका ग्रो हो, आप उसमें ध्यान दो, आप ज्यादा परेशान ना हो आपके टैक्स सिस्टम से। सो गवर्नमेंट क्या आप कह रही है आपको, गवर्नमेंट एक बीच का रास्ता बता रही है कि एक कॉम्पोजिशन स्कीम निकाली है गवर्नमेंट ने, जिसमें आपको रेगुलर डीलर जितना प्रोसीजर और टैक्स रेट्स वगैरह भी इतने हाई नहीं होंगे, प्रोसीजर भी इतना ज्यादा नहीं होगा, लीनियंट स्कीम है ये, which you can opt if you have a turnover between the specified limit, that is 20 lakhs to 20 or 40 lakhs respectively to 1.5 crore. So इस चीज में क्या होता है, सबसे पहला चीज देखो, यहाँ पे मैंने लिखा है फ्लैट नॉमिनल रेट। तो इसमें क्या होगा कि आपको आपका जो टैक्स रेट है ना, वो एक नॉमिनल अमाउंट, मतलब एक छोटा सा रेट आपको दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल से रेस्टोरेंट्स का अभी कंपोजिशन रेट 5% है, ठीक है, सो आपको एक फ्लैट रेट दिया जाएगा। तो अभी कंपोजिशन डीलर के लिए क्या होगा, सपोज मैं इस लिमिट में फॉल करती हूँ एंड आई हैव रजिस्टर्ड माई सेल्फ एज अ कंपोजिशन डीलर। So what will be the thing, instead of paying tax at the normal rates, I will pay tax at the rate of 5%. So suppose if I am a composition dealer, मेरा मैं पूरा सेल्स देखूंगी, composition का क्वार्टरली रिटर्न होता है जैसे, so 3 months का I will see the sales total of 3 months. I'll directly put 5% on that sales amount and pay it to the government. अब इसमें क्या हो जाएगा, अभी जब मैं कुछ परचेस कर रही हूँ, आई मे परचेस इट एट द रेट ऑफ 18%, एट द रेट ऑफ 28%, एट द रेट ऑफ 12%, वॉट एवर द एक्चुअल rate of GST on that goods is, because I am a composition dealer, but the person from whom I purchase may not be a composition dealer all the time. Suppose वो person regular dealer है, तो मुझे उसके हिसाब से वो जो भी रेगुलर डीलर का जो गुड्स पे जो रेट है वो रेट लगाएगा, एंड उस रेट पे मैं टैक्स पे करके उससे परचेस करूंगी। So I'm purchasing at the rate of 12%, 18% or whatever it is, but I am paying at the rate of only 5%. So मेरे लिए ये बहुत ज्यादा बेनिफिट है। So instead of those goods which have a higher rate, उस पे भी मैं सिर्फ 5% ही टैक्स पे कर रही हूँ। So this is a very big benefit for me, right? So अब गवर्नमेंट क्या कह रही है कि आपको एक बहुत ज्यादा हम लीनियंसी दे रहे हैं, बेनिफिट दे रहे हैं कि हम आपको एक नॉमिनल रेट पे टैक्स पे करने को बोल रहे हैं। So उसके बदले में you will have to follow certain guidelines, meet up certain requirements to be in the composition scheme. Okay. So first thing is, you cannot have e-commerce sale. If you are a composition dealer, you cannot sell your goods through e-commerce. And this e-commerce includes also Swiggy and Zomato. So if you are a restaurant, if you want to opt for composition scheme, you have to make sure that you are not dealing with Swiggy or Zomato, which most of the restaurants today do not have it. So most of the restaurants do not fall under composition scheme. Because आजकल Swiggy, Zomato is very common. Like छोटे-छोटे vendors भी आजकल Swiggy पे खुद को register करा देते हैं. So this is an obligation कि आप e-commerce नहीं कर सकते हो sale if you have to opt for composition. Okay. Then no interstate sale means if you can purchase from another state but you cannot sell to another state. जब आपको सेल्स करना होगा, आपको विद इन अ स्टेट ही सेल करना होगा।
आप परचेस कर सकते हो दूसरे स्टेट से, ठीक है। सो नो इंटरस्टेट सेल इज द सेकंड कंडीशन। देन नो आईटीसी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको इनपुट नहीं मिल रहा है। अब जो मैंने रेगुलर का सिनेरियो आपको बताया था, सेल्स, टैक्स ऑन सेल्स माइनस टैक्स ऑन परचेस, अब आपका कॉम्पोजिशन डीलर में आपको आप टैक्स ऑन परचेस आप माइनस नहीं कर सकते फ्रॉम टैक्स ऑन सेल। क्यों? एक तो आपको लीनियंसी दी गई है, कम रेट पे कर रहे हैं। सेकेंड थिंग इज, अब अगर प्रैक्टिकली सोचो, कोई एक मैंने 10,000 का गुड्स खरीदा है एट द रेट ऑफ 18%, ठीक है, मैं कॉम्पोजिशन डीलर हूँ, 10,000 का एक गुड्स खरीदा, उसके ऊपर टैक्स रेट है 1800, और मैं जब वो बेच रही हूँ, बिकॉज आई एम अ कॉम्पोजिशन डीलर, मुझ पे 5% ही टैक्स लग रहा है। सो मेरा टैक्स रेट होगा, मेरा टैक्स अमाउंट होगा 500 रुपीज, राइट। अब अगर हम रेगुलर डीलर की तरह अगर हम इसमें करते हैं, टैक्स ऑन सेल्स इज 500, टैक्स ऑन परचेज इज 1800, मतलब आप 500 में से 1800 माइनस करोगे, इट विल बी एज गुड एज द गवर्नमेंट इज गोइंग टू पे यू 1300 रुपीज। इट इज नॉट पॉसिबल, राइट। प्रैक्टिकली आप देखो, आप कम में से ज्यादा कैसे माइनस कर सकते हो? यू आर ऑलरेडी पेइंग एट अ वेरी लो रेट, उसमें से आप ज्यादा टैक्स अमाउंट कैसे माइनस कर सकते हो? विच इज नॉट, दैट इज नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली। इसलिए आपको गवर्नमेंट कह रही है कि अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम ले रहे हो तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। दैट इज, आपको माइनस कुछ भी नहीं करना है, आपको बस आपका जो सेल्स अमाउंट है टोटल, उस पर 5% टैक्स लगा के आपको टैक्स पे कर देना है, ठीक है। देन कैन नॉट इशू इनवॉइस टू कस्टमर। अब ये क्या है? अगर आप कॉम्पोजिशन डीलर हो ना, आप कस्टमर से टैक्स चार्ज नहीं कर सकते। गवर्नमेंट कह रही है कि आप जो टैक्स पे कर रहे हो ना कस्टमर्स को, वो आप खुद के जेब से दो। सॉरी, आप जो टैक्स पे कर रहे हो गवर्नमेंट को, वो आप खुद के जेब से दो, आप कस्टमर से चार्ज मत करो। सो इन दैट केस यू कैन नॉट इशू एन इनवॉइस, क्योंकि अगर आप कस्टमर्स को इनवॉइस इशू कर रहे हो, बिल दे रहे हो, तो बिल में टैक्स अमाउंट होगा, और मतलब आप कस्टमर से टैक्स ले रहे हो, तो आप इनवॉइस इशू नहीं कर सकते। सो अभी आपको ये क्वेश्चन आएगा कि अरे मैं बिजनेस करूंगा तो मैं इनवॉइस तो दूंगा, कस्टमर्स को बिल तो दूंगा ना, बिल के बिना मैं बिजनेस कैसे करूंगा? सो इसके लिए आपके पास एक ऑप्शन है, देयर इज समथिंग कॉल्ड बिल ऑफ सप्लाई, ठीक है। तो आप जब भी कॉम्पोजिशन, अगर आप कॉम्पोजिशन डीलर हो और आप किसी को इशू कर रहे हो, लेकिन वो किसी को आप बेच रहे हो, तो आपको क्या करना है, आपको बिल ऑफ सप्लाई इशू करना है इंस्टेड ऑफ इनवॉइस। बिल ऑफ सप्लाई में क्या होगा, आपका टैक्स अमाउंट सेपरेट मेंशन नहीं होगा, आपका सिर्फ टोटल अमाउंट मेंशन होगा, अमाउंट ऑफ गुड्स एंड नो टैक्स अमाउंट। सो वो क्या होगा, आप कस्टमर से चार्ज नहीं कर रहे हो, बट आपका रिकॉर्ड रह रहा है कि आप किसको बेच रहे हो थ्रू योर बिल ऑफ सप्लाई, ठीक है। क्लियर विद दैट? सो these are the things that you need to follow if you are a composition dealer. कंपल्सरी आपको ये चीजें करनी है। अगर आप इसमें से एक भी चीज नहीं करते हो तो यू आर नॉट एलिजिबल टू बी अ कॉम्पोजिशन डीलर, ठीक है। नाउ वी विल कम टू अ कंज्यूमर। अभी आप कंज्यूमर देखो, जो मैंने एग्जांपल दिया था पेन का, कि मैं 10 रुपीज की पेन है, 2 रुपए टैक्स लगा के मैं 12 रुपीज में मिस्टर एक्स को बेच रही हूँ, देन ही इज फर्दर सेलिंग इट टू अनदर पर्सन एट द रेट ऑफ 15 रुपीज। नाउ दैट अनदर पर्सन इज अ कंज्यूमर, वो पेन खुद यूज करने के लिए ले रहा है, ठीक है। अब इन दिस केस, अब जो वो थर्ड पर्सन जो है, जो 15 रुपए में खरीद रहा है, दैट पर्सन इज गोना यूज द पेन फॉर हिमसेल्फ, राइट। अब जब वो खुद के लिए पेन ले रहा है, तो वो आगे उसको बेचेगा नहीं, he will use it himself. If he will not sell, he will not have tax on sales. तो जब उसके पास टैक्स ऑन सेल्स नहीं है, उसका वो धंधा ही नहीं है, तो फिर वो परचेज का टैक्स माइनस कहाँ से कर सकता है? नहीं कर सकता। कंज्यूमर को ही पूरा अभी टैक्स जो फाइनल है वो बेयर करना पड़ेगा, वो कुछ डिडक्ट नहीं कर सकता, राइट। सो जब कंज्यूमर पे आता है ना अपनी चेन, तो क्या होता है कि वो आईटीसी की चेन जो है वो ब्रेक हो जाती है। मतलब एट दैट स्टेज द ITC chain is broken there, it cannot be carried forward. So for this reason कंज्यूमर को हम अलग कैटेगराइज करते हैं, इनका कोई अलग टर्नओवर लिमिट नहीं है, कोई अलग टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन ऐसा कुछ भी नहीं। कंज्यूमर का बस इतना होता है कि आप जो भी टाइप के डीलर हो, अगर आप रेगुलर हो, आप कॉम्पोजिशन हो, दोनों में से जो भी हो, जब आप आपका रिटर्न डालोगे तो आपके पास दो कैटेगरीज दी होगी आपको, दैट इज बिजनेस टू बिजनेस एंड बिजनेस टू कंज्यूमर।
तो आप जो भी डायरेक्ट कंज्यूमर्स को बेच रहे हो ना, वो आपको B2C में, दैट इज बिजनेस टू कंज्यूमर में डालना होगा। तो यही बस कंज्यूमर का चीज है कि आपको एक अलग कैटेगरी में उसको डालना होगा, एंड यू कैन नॉट पुट द एंटायर थिंग टुगेदर। सो बिजनेस टू बिजनेस का अलग डालना है, बिजनेस टू कंज्यूमर का अलग डालना है। दिस इज जस्ट फॉर द रिकॉर्ड कि क्या कंज्यूमर्स को बेचा जा रहा है, क्या बिजनेस को बेचा जा रहा है, दैट इज द ओनली थिंग। बाकी कंज्यूमर्स का यहाँ पे और कुछ एक्स्ट्रा है, ठीक है। सो दिस इज द थिंग फॉर टुडे। क्या क्या टाइप्स ऑफ डीलर्स है, इट इज गिवन इन अ वेरी गुड चार्ट फॉर्मेट, एक्सप्लेन क्लियरली। आई होप आपके काफी डाउट्स इससे क्लियर हो गए हो। और अगर आप कुछ नया रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो या आप किसी को करवा के देना चाहते हो रजिस्ट्रेशन, आई होप यू विल बी एबल टू गिव एडवाइस टू पीपल कि अगर आपको कंपोजिशन करना है तो आपको क्या करना है, आपको रेगुलर करना है तो आपको क्या करना है। अगर कोई आके पूछता है आपको कि मैं कंपोजिशन में जाना चाहता हूँ, मैं जाऊँ क्या, तो यू विल हैव दिस कंडीशंस इन योर माइंड कि अरे ये कंडीशन आपकी फुलफिल हो रही है तो आप जा सकते हो। और आप खुद का भी बिजनेस खोलना चाहते हो, यू कैन take a decision for yourself and you don't have to consult someone for this small thing, ठीक है। So this was the topic for today. Thank you very much. Bye bye.